Hello students, today we are going to see regarding statistics. Um, Here we'll see about the basic information about statistics. What is statistics? So here we are moving to the introduction to statistics. Introduction. The word statistics, which indicates what it is, which gives us a variety of different meanings for different professions or different peoples. Different way of their professional or their activity or different way of their scope, how they are going to observe this one. So the word statistics come from the Italian words statista. कहाँ से आया था? The statistics word इटालियन वर्ड से आया था. उसका नाम है स्टैटिस्टा. स्टैटिस्टा मतलब स्टेटमेंट. स्टैटिस्टा मीन्स statement. So this is about the basic introduction about this. Furthermore, we'll see the German word statistic. Then second, the German word statistic, which का मतलब है, इसका मतलब है political state, which indicates political state. The two word statistics today refers to either quantitative information, नंबर में हमको क्वांटिटेटिव में इंफॉर्मेशन देगा, नहीं तो मेथड ऑफ डीलिंग विथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. दोनों भी क्लब कर सकते हैं, लाइक क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. सो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स आज के इसमें रेफर किया हो तो वो एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमको देगा, नहीं तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और उसको क्वालिटेटिव में हमने रेफर करने के लिए यूज करेंगे. इसको बोलते हैं हमने स्टैटिस्टिक्स. सो मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data according to Croxton and Cowden. Croxton and Cowden. So definition, statistics मतलब क्या है? Statistics में हमने information collect करना, collecting. क्या कलेक्शन कर रहे हैं? हमने पेशेंट के पास, नहीं तो हमने सर्वे, नहीं तो हमने डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद सेकंड हमने क्या करना, वो इंफॉर्मेशन को हमने प्रेजेंट करने के लिए रेडी करेंगे. कैसे प्रेजेंट करेंगे? प्रेजेंटेशन के लिए हमने वो इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे. आफ्टर अरेंजिंग इट सिस्टमैटिक ऑर्डर, नेक्स्ट उसको हमने एनालाइज करना. सिस्टमैटिकली अरेंज करने के बाद हम एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद हमको इंटरप्रिटेशन मिलेगा. क्या इंटरप्रिटेशन मिलेगा? इस कलेक्टेड इंफॉर्मेशन में किसका इंफॉर्मेशन ज्यादा स्कोर मिला, किसका मॉडरेट मिला, किसका कम मिला, और कौन फेल हो गया, ऐसा कलेक्टेड इंफॉर्मेशन से हमने सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है. सो उसको बोलते हैं हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. Then statistics is the science and art of dealing with figures and fact. दूसरा चीज हमने देखा तो statistics क्या होगा? Statistics is a science that is particularly which is used in the health sciences, uh, as well as art of, it's a art dealing with figures and facts. Figures and facts, और जो fact हमने collect किया उसको हमने figure में represent करेंगे in the form of graphs or tables. Okay, so biostatistics. Biostatistics is the branch of statistics applied to biological or medical sciences. Biostatistics is the branch of statistics applied to biological or medical sciences. Statistics क्या हमने देख लिया अभी? Biostatistics. Bio मतलब science. So branch of statistics. Biostatistics मतलब branch of statistics. कहाँ पे अप्लाई होगा? इधर biological नहीं तो medical science को अप्लाई होता है. So biostatistics is most methods used in dealing with statistics in the field of health sciences such as biology, medicine, nursing, public health, etc. जो जो साइंस का स्ट्रीम है वो सारे जगह पे स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे. इसको हमने बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स. so, इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ लाइक हेल्थ साइंसेस सच एज बायोलॉजिकल साइंस है, मेडिसिन साइंस है, और नर्सिंग इससे साइंस है, देन पब्लिक हेल्थ कम्स अंडर द साइंस. सो ये सारे बोलेंगे methods where biostatistics deals with. Next, biostatistics. Biostatistics is a branch of statistics applied to biology, as I said previously, or medical sciences. Biostatistics मतलब क्या है? Second definition is the branch of statistics applied to biology or medical sciences. Biostatistics is called
बायोमेट्री. बायोस्टैटिस्टिक्स कॉल्ड बायोमेट्री. मतलब ये कौन सा वर्ड से आया? फ्रॉम ग्रीक वर्ड. बायोस मीन्स लाइफ, मेट्रॉन मीन्स मेजर्ड. बायोस्टैटिस्टिक्स आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री. ये ग्रीक वर्ड से कन्वर्ट हुआ था. ग्रीक वर्ड में बायोस मीन्स लाइफ and metron means measured. So it is measurement of life. So it is called measurement of life. Clear? So next we are moving to the types of statistics. ये statistics there are two approach are present according to the analysis of the data. So over that the first one is descriptive statistics. Descriptive statistics ये describe करता है वो events को, like measurement of scale में आना जैसा. Descriptive statistics ये describe करता है particular collected information को. So descriptive statistics are techniques which help the investigator to organize, summarize and describe measures of a sample. क्या क्या करेंगे? जो collected information को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसको हमने समराइज कर सकते और उसको हमने डिस्क्राइब कर सकते, इसको हमने बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया? इन्फरेंशियल अप्रोच हेल्प टू डिसाइड whether the outcome of the study is a result of factors planned with the design of the study or determined by chance. सेकेंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहे? आपके स्टडी में जो जो मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपने जो कलेक्ट किया, किसके बारे में रिसर्च करना था, जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, आप उसका लास्ट एंड रिजल्ट क्या आया, वो एंड रिजल्ट में वो फैक्टर्स को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा विद प्रॉपर डिजाइन के साथ क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा. जो आपने इनपुट दिया सेम इसके हिसाब से रिजल्ट निकला, और नहीं तो बाय चांस आपका रिजल्ट निकला, वो कंफर्म करने के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं. सो स्टैटिस्टिक्स में टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को समराइज कर फिर उसको डिस्क्राइब करता है. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज कर वो लास्ट में क्या फाइंड आउट कर रहा है, आपका डिजाइन के हिसाब से आपका स्टडी करेक्टली निकला, नहीं तो आपका स्टडी बाय चांस अपोजिट में निकल गया. सो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आया तो स्टैटिस्टिक्स प्ले ए वाइटली इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसर्च. क्या बोला? फर्स्ट चीज है स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्यों? हर एक रिजल्ट हमको जो भी मिल रहा है उसको हमने एक्सप्रेस करने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प कर रहा है रिसर्च में. देन इट हेल्प्स टू आंसर इंपॉर्टेंट रिसर्च क्वेश्चन एंड फील्ड इन स्टडी. सेकेंड वन, जो रिसर्च में हमने जो आंसर ढूंढना था वो आंसर के लिए ये हमको हेल्प करेगा, वो आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करेगा अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च क्वेश्चन. सो वो आंसर क्या होता था? जो हमारा रिसर्च में हमने ये करना था वो रिजल्ट कैसा निकला, अच्छा निकला क्या बुरा निकला, उसका फीडबैक और आंसर हमको क्वांटिटेटिवली मिल जाएगा. नेक्स्ट, हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स. सेकंड आपको क्या कर रहा है? थर्ड आपको इजीली स्टैटिस्टिक्स को कैसा अप्लाई करना, उसको कैसा हैंडल करना और कौन सा मेथड सेलेक्ट करना, उसके लिए आपको हेल्प करेगा. देन द फोर्थ वन इज important to understand what tools are suitable for a particular research study. Yes, this is exactly important. फोर्थ वन आपको क्या कर रहा है? फोर्थ वन आपका स्टडी के हिसाब से कौन सा वाला टूल हमने लेना आपका रिसर्च स्टडी में एवेलुएट करने के लिए. एग्जांपल, आपका कलेक्टेड डेटा के लिए आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल आ गया, एज, सेक्स, एज, जेंडर, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड और एरिया ऑफ लिविंग, ये सारे आएगा. वो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा वाला स्टैटिस्टिक्स आपने सेलेक्ट करना, लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने निकाल सकते हैं. क्यों? वो एज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो जेंडर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उनका एरिया ऑफ लिविंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उनका एजुकेशनल स्टेटस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकालना उधर. ओके, बट दूसरा जगह पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया वो सारे इन्फॉर्मेशन को चेक करना. एग्जाम्पल, हाइपरटेंशन, एक एरिया में कितना लोग अफेक्ट हुआ था, कौन सा एज ग्रुप लेंगे? एज ग्रुप लेंगे हमने मिडिल अडल्ट में, जो दोस आर अंडर द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45 इयर्स. यहाँ पर हमको ये हेल्प करेगा कौन सा वाला स्टैटिस्टिक्स मेथड हमने अप्लाई करना. इसके लिए हमको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना. इन्फ्रेंशियल में क्या निकलेगा? कितना लोग हाई बीपी में, कितना लोग मॉडरेट बीपी में, कितना लोग लो बीपी में, उसका कैटेगराइज करने के लिए हमको हेल्प करेगा. सो इसके लिए बोलते हैं हमने स्टैटिस्टिक्स हमको बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर क्या हमको ये समझदार कर हमको कौन सा वाला सेलेक्ट करना है.
कौन सा वाला स्टैटिस्टिक्स मेथड सेलेक्ट करना, उसके लिए हमको ये हेल्प करेगा. देन स्टैटिस्टिक्स enables to understand specified statistical concepts and procedure. सेकंड चीज लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स हमको मेक अस टू अंडरस्टैंड, हमको मेक अस टू अंडरस्टैंड करेगा किस काम के लिए, स्पेसिफाइड स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट कहां पर अप्लाई करना और उसका प्रोसीजर कैसा है. हर एक फार्मूला का पीछे हमने ये अप्लाई किया था, हमका आंसर कैसा निकलेगा, वो आंसर के साथ हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, वो सारे चीजेस को हमको हेल्प करेगा. So these are called importance of statistics. So statistics play vital important role in research. First one. Second one, answer our questions in the research. Third one, make us to understand how to apply statistical method. Fourth one, important to understand what tool, कौन सा tool select करना, उसके लिए help कर रहा है. And the last one, हमको उसका concept के बारे में समझ में लेने के लिए और कौन सा procedure कैसा कैरी फॉरवर्ड करना द प्रोसीजर को, उसके लिए हमको हेल्प करेगा. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इट फैसिलिटेट्स comparisons, it simplifies the message of figure, it helps in formulating and testing hypothesis, it help in predictions. क्या क्या करेगा, फर्स्ट चीज है हमको कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है. किस काम के लिए, जो पहले उनका स्टेटस इतना था, अभी इनका स्टेटस क्या है. एग्जांपल मैंने पहले एग्जांपल बताया था आपको हाइपरटेंशन के बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया में. सो 35 इयर्स से लेकर 45 इयर्स का अंदर, इसमें हमने 3 डिवीजन में हाइपरटेंशन हमको मिलेगा. क्या कंपैरिजन देगा, 35 इयर्स से 45 ईयर का अंदर हाई हाइपरटेंशन कितना लोग को, मॉडरेट कितना लोग को, और नहीं तो हमने कैसे बोलेंगे सीवियर हाइपरटेंशन कितना लोग को, देन मॉडरेट हाइपरटेंशन कितना लोग को, माइल्ड हाइपरटेंशन कितना लोग को. इसके साथ हमने कंपेयर कर सकते हैं 35 टू 45 ईयर में कौन सा ईयर में हाइपरटेंशन ज्यादा बढ़ रहा है, एक चीज. दूसरा चीज हमने ये कंपेयर सकते हैं कौन सा ईयर में हाइपरटेंशन सीवियर हो रहा है, और कौन सा लाइफस्टाइल में और कौन सा फैमिली बैकग्राउंड में हो रहा है, वो सारे हमने कंपेयर कर सकते हैं. द नेक्स्ट, इट सिंप्लीफाइज द मैसेज ऑफ फिगर. सेकंड, हमको मैसेज ऑफ फिगर देगा. कौन सा वाला, कौन सा भी चीजें है ना हमने फिगर में डालेंगे, वो फिगर से हमको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, एक नजर में हमको पता चलेगा ये स्टैटिस्टिक्स का इन्फॉर्मेशन है, तो वो कंप्लीट स्टडी में क्या मिला था. एग्जाम्पल मैंने रखा था 35 टू 45 इयर्स में हाइपरटेंशन सीवियर में 30% रखा है, सीवियर में 30%. ओके, सेम हाइपरटेंशन मॉडरेट में 50% रखा है, सेम हाइपरटेंशन सेम ईयर में माइल्ड में 20% रखा. इसके हिसाब से 30 50 20 ये ग्राफ में मैंने डाला, ग्राफ के हिसाब से मुझे पता चलेगा 50% जो 35 टू 45 इयर्स में इस एरिया में मॉडरेट हाइपरटेंशन में. सो इसके हिसाब से 30% सीवियर हाइपरटेंशन में. सो मतलब द 50% पॉसिबिलिटी आर देयर, 30% विल कन्वर्ट टू सीवियर हाइपरटेंशन में. बहुत सारे पॉसिबिलिटी आर देयर, में सारे कोरिलेट कर सकते, कंपेयर कर सकते द सिंपल फिगर के हिसाब से. देन इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई भी रिसर्चर एक स्टडी करने के पहले अपने मन में एक चीज सोचता है अपने स्टडी के बारे में, मैं ये स्टडी करूंगा, इस स्टडी के हिसाब से मेरा स्टडी क्या निकलेगा. ठीक है, इसके हिसाब से मैंने इतना किया था, हाइपरटेंशन सीवियर ज्यादा निकलेगा, मैंने ये रखा था. तब मैंने चेक करने के बाद मुझे निकला हाइपरटेंशन ज्यादा नहीं है, हाइपरटेंशन कम ही है 35 टू 45 इयर्स में. इसका मतलब क्या हो गया, मेरा हाइपोथेसिस पहले ये था, मेरा असम्पशन पहले ये था, क्या मैंने सोच कर रखा था यहाँ पर हाइपरटेंशन 35 टू 45 इयर्स में ज्यादा निकलेगा, लेकिन मैं पूरा स्टडी करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं निकला, नहीं तो कम निकला, जो मैंने सोचा उससे कम निकला. विच इंडिकेट्स मेरा हाइपोथेसिस क्या हुआ, मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट निकला, नहीं तो फालतू निकला, नहीं तो गलत है, वो इजीली पता चल जाए. इसके लिए हमको ये हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने के लिए भी प्लस उसको टेस्ट करने के लिए भी हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स. देन लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन. हमको एडवांस प्रिडिक्शन करने के लिए भी ये हेल्प करेगा हमको. सो दीज आर द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट चीजेस के लिए मूव करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग इज स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स. नेक्स्ट हेडिंग क्या है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट. इट्स अ रिवीजन क्लास. स्केल्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स और लेबल्स टू ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, states or events in accordance with specific rules to represent
क्वांटिटीज और क्वालिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स। इतना बड़ा है, कंफ्यूजन नहीं होना। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या बोलेंगे हमने, मेजरमेंट एक प्रोसेस है। किस काम का प्रोसेस है वो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को ले लो, एक पर्टिकुलर ग्रुप को नंबर में असाइन कर सकते हैं। जो एग्जांपल हमारा सैंपल है, रिसर्च करने के लिए हमारा सैंपल है, वो सैंपल को नंबर में असाइन कर सकते हैं। कितना सैंपल, एग्जांपल तो आपकी क्लास ही ले लो, क्लास में टोटल कितना स्ट्रेंथ है, एग्जांपल एक क्लास में पूरा 50 स्टूडेंट्स है। 50 स्टूडेंट्स मतलब ये 50 स्टूडेंट्स को हम नंबर में असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 50 तक कौन कौन है। ओके, देन लेबल्स टू ऑब्जेक्ट, वो 50% को हमने लेबल्स में कर सकते हैं, लेबल्स टू ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। कैसा लेबल्स टू ऑब्जेक्ट में करेंगे, लाइक रोल नंबर वाइज, रोल नंबर वाइज किया, नहीं तो अल्फाबेटिक वाइज, अल्फाबेटिक वाइज 50 मेंबर्स का अल्फाबेटिक वाइज मैंने अरेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, पोर्शन के हिसाब से वो अरेंज हो सकता है। पोर्शन के हिसाब से क्या हो गया, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से हमने मेजर भी कर सकता है। नेक्स्ट, स्टेट के हिसाब से मेजर कर सकता है, हर एक स्टेट के हिसाब से कौन सा स्टेट होता है, हर एक स्टेट, एग्जांपल इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस ओवर पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उसका एग्जामिनेशन में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, एक इंडिविजुअल का पर्टिकुलर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स में कैसा है, वो कैसा है, सो एजुकेशन में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में कैसा, वो सारे हमको हर एक स्टेट को हमने मेजर कर सकते हैं। इवेंट्स इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक रूल्स, उसके हिसाब से हमने स्पेसिफिक रूल्स टू रिप्रेजेंटेट, किस काम के लिए रिप्रेजेंटेट कर रहा है, इधर क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेट करना है, उनका क्वांटिटी क्या था, नहीं तो उनका क्वालिटी को क्वांटिटी में अट्रीब्यूट्स करता है, क्वालिटी को क्वांटिटी में हमको दिखाएगा, क्वालिटी को क्वांटिटी में दिखाएगा। एग्जांपल, एक इंडिविजुअल क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है, उसका परफॉर्मेंस हमको कैसा दिखाएगा, ये बहुत अच्छा पढ़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका क्वालिटी है, वो उसका क्वालिटी हमको कैसा पता चलेगा, जो टेस्ट में उसका मार्क निकलेगा, टेस्ट में वो सबसे आगे आएगा, क्लास में नंबर 1 हो गया, नहीं तो हमारा जो हमारे एरिया पे, नहीं तो इन अवर लोकेलिटी एरिया में वो नंबर 1 निकलेगा, रैंक 1 में निकला, विच इंडिकेट्स दैट द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, वो क्वालिटी रैंक में रिफ्लेक्ट हो रहा क्वांटिटी में, which indicates the quality in the form of rank 1 quantity में। okay, we do not measure specific objects, persons, etc. so we measure attributes or features that define them। किसी चीजेस को डिफाइन करता है, सिर्फ उस चीज को ये मेजर करता है, उस एट्रीब्यूट को ये चेक करता है, इंडिविजुअल का अपने काम के लिए ये चेक नहीं करेगा। इररेस्पेक्टिव, देयर इज नो रिलेशन, कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने चेक कर सकते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने चेक करना मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल्स। आई रिपीट वंस अगेन, नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल्स एंड रेशियो स्केल्स। सो फर्स्ट हमने देखेंगे नॉमिनल स्केल क्या है। nominal measurement or nominal scale, there must be distinct classes, but these classes have no quantitative properties, so therefore no comparison can be made in terms of one category being higher than the other। यहाँ पर nominal क्या हो गया, ये हमको नंबर दे रहा है, यहाँ पर ये कैटेगरी दूसरे कैटेगरी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये ज्यादा ये कम है, इससे ये ज्यादा, इससे ये बढ़िया है, वैसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देगा। एग्जाम्पल आपने देखा तो हमारा जेंडर को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2 नाम पे, नंबर 1 इज मेल, नंबर 2 इज फीमेल, नॉमिनल नाम के हिसाब से डिवाइड करता है। नॉमिनल स्केल, देयर आर नो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर दिस वेरिएबल, यहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इस वेरिएबल के सिर्फ 2 ही चीजें में डिवाइड करता है, नॉमिनल वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं हमने, मेल एंड फीमेल। ओके, मेल एंड फीमेल, जैसे कि नर्सिंग में भी हमने कर सकते हैं, नॉमिनल मेजरमेंट में नर्सिंग में कैसा डिवाइड किया है, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इसका मतलब ये चीज हो गया नॉमिनल। नेक्स्ट, समटाइम्स नंबर्स आर यूज्ड टू डेजिग्नेट कैटेगरी मेंबरशिप। एग्जांपल, आपको हर एक चीज को कैटेगरी में कर सकते हैं डेजिग्नेट में, कैसा, नंबर 1 कंट्री के हिसाब से, पॉपुलेशन में नंबर 1 कौन सा है, चाइना, पॉपुलेशन में नंबर 2 इंडिया, सेम ऐसा हर एक कंट्री के हिसाब से, नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट, नंबर 2 मेक्सिको, नंबर 3 कनाडा, नंबर 4 अदर्स, ऐसा हर एक ऑरिजिन के हिसाब से हमको कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड वन इज ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल और
distinct classes, but these classes have a natural ordering or ranking. Ordinal मतलब क्या, ऑर्डर पे अरेंज करना, और उसको बोलते हैं हमने रैंकिंग ऑर्डर, रैंकिंग में हमने स्पेसिफाई करते हैं. सो द डिफरेंस कैन बी ऑर्डर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड. कौन सा बेसिस में करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड की बेसिस में. एग्जांपल, फाइनल पोजीशन ऑफ हॉर्सेस इन ए थारोब्रेड रेस. जो घोड़े का रेस हो रहा है, उस रेस में हॉर्सेस का ऑर्डिनल पोजीशन कैसा निकले थे, फिनिश्ड जो फर्स्ट निकला है, सेकंड जो सेकंड है, थर्ड जो आया वो थर्ड, देन फोर्थ, ऐसा ऑर्डर कर देता था. तो इसको बोलते हैं हमने ऑर्डिनल स्केल. सेम ऐसा ही क्लास में हमारा टेस्ट होता है. टेस्ट में हमने क्या निकालते हैं, टेस्ट में हमने ये निकालते हैं क्लास में जो सबसे सभी से आगे है, जो हाईएस्ट स्कोर किया उसको हमने बोलते हैं फर्स्ट, जो उसके बाद सेकंड जो आया उसको सेकंड बोलते हैं. सो इसके हिसाब से हमको फर्स्ट सेकंड कौन आया वो डिवाइड करने के लिए ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल मतलब क्या है, ऑर्डरिंग नहीं तो रैंकिंग, ऑर्डरिंग नहीं तो रैंकिंग. ओके, सो डज नॉट अस्यूम दैट द इंटरवल्स बिटवीन नंबर्स आर इक्वल. सारे नंबर के हिसाब से सारे इक्वल ये चेक नहीं करता है, ये सिर्फ इतना चेक करता है कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन फोर्थ आया. सिर्फ उनका प्लेस वैल्यू देखता है, सिर्फ उनका ऑर्डरिंग नहीं तो रैंकिंग को देखता है, दैट इज प्लेस वैल्यू देखता है. ओके, सो सिर्फ यही चेक करता है, टोटल लो को स्पेसिफाई नहीं करता है. नेक्स्ट अब वो करेंगे इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल के हिसाब से it is possible to compare difference in magnitude, but importance, the 0 point does not have a natural meaning. So it captures the properties of nominal and ordinal scale used by most psychological test. यहाँ पर कुछ नहीं, इंटरवल स्केल है, कोई भी चीजें हमने करने के बाद में बीच में कुछ रह गया, ओके, एक नॉमिनल में किया, मेल फीमेल डिवाइड कर लिया. सेकंड चीज हमने किया रैंकिंग में डिवाइड किया, मेल के हिसाब से इतना फर्स्ट, इतना सेकंड, इतना थर्ड, फीमेल के हिसाब से इतना फर्स्ट, इतना सेकंड, इतना थर्ड निकला. फिर भी एक चीज कम पड़ रहा है, क्या चीज है, ये फर्स्ट जो सेकंड आया था इन दोनों का बीच में कितना गैप था, इंटरवल कितना था, वो चेक करना मुश्किल हो रहा था. उसके हिसाब से नॉमिनल ऑर्डिनल दोनों क्लब कर दूसरा तीसरा एक निकला, दैट इज कॉल्ड इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में क्या निकला है, सो designates an equal interval ordering. Equal interval में है the distance between, for example, first and second, इन दोनों का बीच में कितना डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस सेकंड एंड थर्ड के बीच में है, और सेम डिस्टेंस थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है, सेम डिस्टेंस फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बीच में, ये चेक करता था. एग्जांपल, टेस्ट में जो फर्स्ट आया उसका और जो सेकंड आया इन दोनों का बीच में डिफरेंस कितना था, इंटरवल. देन जो सेकंड आया जो थर्ड आया इन दोनों का डिफरेंस कितना, सभी का सेम निकला नहीं तो अलग अलग निकल रहा है. Okay, we can see the same differences exist between 10 degree Celsius, 50 degree Fahrenheit, and 20 degree Celsius, 68 degree Fahrenheit. So 25 degree Celsius, 77 degree 77 Fahrenheit, and 35 degree Celsius, 95 Fahrenheit. So ऐसा निकला. इसके हिसाब से हमने देखा तो हमने देखा क्लास में हर एक स्टूडेंट्स को हम जाकर पल्स चेक करेंगे, सारे बच्चों का पल्स सेम निकलेगा. पल्स को हमने कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर उसके हिसाब से कितना लोग आया. सो यहाँ पर हमने नॉमिनल भी यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग भी यूज कर सकते हैं, रैंकिंग. पल्स रेट को कैसे रैंकिंग करेंगे, पल्स रेट को टैकीकार्डिया, देन नॉर्मल पल्स रेट, देन ब्रैडीकार्डिया, ऐसा डिवाइड करेंगे. पूरे क्लास का पल्स हमने चेक करेंगे, उसके हिसाब से हमने कैटेगराइज कर सकते हैं. मेल्स में ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया नॉर्मल कितना है, फीमेल्स में ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया नॉर्मल कितना है, वो इंटरवल चेक करने के लिए इंटरवल स्केल हमको हेल्प करेगा. ओके, सो नेक्स्ट हमने मूव करेंगे रेशियो स्केल. ये भी होने के बाद नेक्स्ट हमको ये चीज अफेक्ट हो रहा है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. इसको हमने बोलते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट. दिस लेवल हैज ऑल द थ्री एट्रीब्यूट्स. इसमें सारे तीन इंक्लूडेड है. कौन सा नॉमिनल, नेम के हिसाब से डिवाइड करता है, ऑर्डिनल ऑर्डर के हिसाब से करता, नहीं तो रैंकिंग के हिसाब से करता, लास्ट वन इंटरवल. इंटरवल क्या है, इंटरवल देखता दोनों चीजों का डिफरेंस कितना था, वो इंटरवल देखता है, वो भी इंक्लूड होता है. दैट इज मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड है, इक्वल इंटरवल भी इंक्लूडेड है, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी इंक्लूड है. एब्सोल्यूट 0 पॉइंट क्या बोलते हैं हमने, इक्वल इंटरवल हमने बोलते हैं, देन मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है. सो इट रिप्रेजेंटेट कंटिन्यूअस वैल्यूज. रेशियो को कंटिन्यूअस वैल्यू में बोल देते हैं. एग्जांपल, बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, वेट, हाइट, वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, पल्स, टेम्परेचर, ये सारे बायोफिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को हमने यूज कर सकते हैं रेशियो. Example, 30 kg is thrice of 10 kg, 20 centimeters twice of 10 centimeter, 8 hours is
4 टाइम्स ऑफ 2 आवर्स। एग्जाम्पल क्लास में एक बॉय वेट आया था 100, एक लड़की का वेट आया था 50। एग्जाम्पल एक लड़की का वेट है, सो इसका मतलब इस बॉय का वेट है, इस बॉय का वेट है डबल देन द गर्ल वेट। एक लड़का का वेट है, उसका वेट डबल देन द गर्ल वेट। ऐसा हमको रेशियो में दे सकते हैं। सो 2:1। सो दो लड़की को रखा तो वहां पर एक लड़का का वेट आ रहा, दो 50 केजी का लड़की को रखेंगे वहां पर एक लड़का का वेट आएगा 2:1। दूसरा बेस्ट चीज इसको एक्सप्लेन करना तो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन में पेशेंट रेशियो रखता था। हमारा पेशेंट रेशियो क्या था, आईसीयू में रेशियो 1:1, फिर वार्ड में आया था रेशियो 1:3, नहीं तो 1:10। इसके हिसाब से हमने डिवाइड करते, एक नर्स ने 10 पेशेंट को टेक केयर कर सकते इन अक्यूट वार्ड में, देन एक नर्स ने 3 पेशेंट को टेक केयर कर सकते हैं इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, एक नर्स ने एक पेशेंट को टेक केयर कर सकते हैं इन क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में। इसके हिसाब से हमने डिवाइड करेंगे रेशियो स्केल्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ measurements of scales. So each of these scales have different properties, difference, magnitude, equal interval or true 0 point, and allows for different interpretation. Okay, the scales are listed in hierarchical order, एक systematic order पे रखा है उसको। nominal scale have the fewest measure, nominal scale fewest measure है, then unproperty है second, then third ratio having the most properties, includes the properties of all the scales beneath it is on the hierarchy. Then the goal is to be able to identify the types of measurement scale and to understand proper use and interpretation of the scale. इसको सही तरीका में यूज करना और उसको अच्छे से समझ लेना, और ये दोनों हमको समझ आ गया, नेक्स्ट उसका फीडबैक, नहीं तो उसमें से हमको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन निकलेगा। एग्जांपल आपने देखना, प्राइमरी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कैसा यूज करेंगे। नॉमिनल स्केल के लिए मैंने दिया सिंबल्स, नहीं तो असाइंड टू रनर, रनर के लिए असाइन करते हैं। एग्जांपल कंट्री वाइज ले लो, हर एक कंट्री ओलंपिक गेम में हर एक कंट्री के नाम पे एक इंडिविजुअल खड़े होता था, है ना। उसके हिसाब से लास्ट में जो जीतेगा उसको बोलते हैं कौन सा कंट्री आया, नॉमिनल के हिसाब से बताते ये कंट्री में। नेक्स्ट ऑर्डिनल में ये सेम कंपटीशन में कंट्री के हिसाब से गया, लेकिन उसमें फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ऑर्डर के हिसाब से बताएंगे, ऑर्डर के हिसाब से बताएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके हिसाब से टेबल चेंज हो जाएगा। पहले दौड़ने के पहले उनके हिसाब से सेट होता था, लेकिन लास्ट में रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के हिसाब से ऑर्डर चेंज हो जाता है। सो उसको बोलते हैं हमने ऑर्डिनल। द नेक्स्ट इंटरवल, इंटरवल में क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट आया और जो सेकंड आया इन दोनों का बीच में कितना था डिफरेंस, कितना डिफरेंस था, जो सेकंड आया और थर्ड आया इन दोनों का बीच में कितना डिफरेंस था। ओके, एग्जांपल ओलंपिक में आपने देख सकते हैं, एथलेटिक्स में पर्टिकुलरली एथलेटिक्स में द रेसिंग रखा था 100 मीटर का, 100 मीटर का रेसिंग में उज़ैन बोल्ट फर्स्ट आया था, ठीक है, सेकंड पोजीशन आया, लाइक एग्जांपल सेकंड रखेंगे अपने, जॉनसन सेकंड आया था। सो उज़ैन बोल्ट और जॉनसन इन दोनों का बीच में कितना सेकंड फर्क आया था, है ना, उसको बोलने वाला चीज है इंटरवल चीजेस है। देन लास्ट वन इज रेशियो, रेशियो स्केल के हिसाब से क्या, कितना टाइम पे इन लोग कंप्लीट किया, रेशियो के हिसाब से उसेन बोल्ट ने टाइम में कंप्लीट किया 9.88 में, नहीं तो 9.80 में। देन नेक्स्ट जॉनसन ने कंप्लीट किया 9.90 नहीं तो 10 में। देन थर्ड पर्सन आया 10.08 में कंप्लीट किया। इसके हिसाब से हमको टाइम पता चल जाएगा, रेशियो टाइम के हिसाब से, हमने टाइम के हिसाब से इनका इंटरवल भी पता हो जाएगा हमको, इनका रैंकिंग भी पता हो जाएगा और इसका नेम भी पता हो जाएगा। इसके लिए रेशियो स्केल सारे स्केल को इंक्लूड करता है। इसको बोलते हैं हमने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। ओके, इसको बोलते हैं हमने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। सो इसके हिसाब से हमने 4 स्केल्स देखा है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर आइडेंटिफाई करता, नहीं तो क्लासिफाई करता है, उसको नेम के हिसाब से क्लासिफाई करता। कैसा क्लासिफाई करता है, कॉमन एग्जांपल हमने बोलता सोशल सिक्योरिटी नंबर, नहीं तो नंबरिंग ऑफ फुटबॉल प्लेयर। सो मार्केटिंग के एग्जांपल ब्रांड नंबर्स और स्टोर टाइप में। ऑर्डिनल में आया तो ये हमको क्या इंडिकेट कर रहा है, नंबर्स इंडिकेट करता है द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बट नॉट द मैग्नीट्यूड, उनका डिफरेंस बता देगा। सारे चीजेस को एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन सिर्फ डिफरेंस बोलेगा, फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन, ऑर्डर के हिसाब से। क्वालिटी रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ टीम इन द टूर्नामेंट, सिर्फ इतना ही देगा। सो मार्केटिंग के हिसाब से रैंकिंग और मार्केटिंग पोजीशन और सोशल क्लासेस। देन इंटरवल में आएगा, इंटरवल में डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट कैन बी कंपेयर्ड, 0 पॉइंट इज attribute, difference
क्या करेंगे, 0 पॉइंट इज द एट्रीब्यूट रखकर इसको डिफरेंस पता कर सकते हैं कितना डिफरेंस में आएगा। एग्जांपल आपने देख सकते हैं टेम्परेचर फ़ारेनहीट सेल्सियस का डिफरेंट कन्वर्शन में कितना होगा, नहीं तो एटीट्यूड्स ओपिनियंस इंडेक्स नंबर में देख सकते हैं। लास्ट वन इज रेशियो, रेशियो के हिसाब से 0 पॉइंट इज फिक्स्ड, रेशियोज ऑफ स्केल वैल्यूज कैन बी कंपेयर्ड। यहाँ पर क्या क्या होगा, लेंथ एंड वेट, बीएमए चेक कर सकते हैं, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, एज, सेल्स, इनकम, कॉस्ट, सारे चीजेस इसमें इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेशियो स्कोर। तो इसके हिसाब से हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने क्लासेस में देखा था स्टैटिस्टिक्स क्या, उसका टाइप्स क्या था, देन हमने चेक किया था स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स, उसमें 4 स्केल आया, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। थैंक यू।